Hello, my dear students. This is Rajesh Kumar, PGT Geography, KV number 1, Jammu, and I am going to lecture on class 12 Geography Part A. The chapter that we are going to discuss today, Human Geography, Nature and Scope, and we will talking about the determinism, possibilism, and neo-determinism. These are three topics we will be discuss today. So let's start. Human environment relation is the interplay between people and their environment. First of all, we should know about the origin of the determinism. Actually, this concept was started or begin in the Germany. The determinism philosophy was started in Germany mainly by the Friedrich Rätzel and his student Kumari Ellen Churchill Semple. Actually, what is the main concept of the determinism? Actually, determinism says human being dependent on the environment, human being adapt to the environment, and human being modify the environment. Actually, this thing is human being modify the environment. This concept is related to the possibilism. Okay, so first here we are trying to discuss both concepts of human geography, determinism and possibilism. Actually, determinism and possibilism are the dominant theories. Determinism philosophy was began in Germany and possibilism philosophy was started in the France. Okay, एक्चुअली जो डिटर्मिनिज्म है, जो निश्चयवाद है, वो ये कहता है कि पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट इज सुप्रीम, एंड पॉसिबिलिज्म फिलॉसफी इज ट्राइंग टू सेज दैट द ह्यूमन is supreme over the nature. So this is the conflict between these concepts, determinism and possibilism. It has been a debate for years that flourished from ancient to modern period. Okay, among geographers, a great number of them have strong emphasized the effect of the environment. Determinists and men's active and also a great number are supporting the nation of possibilism. एक्चुअली जो कोर कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म का, वो तो ये कहता है कि डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि पर्यावरण इज सुप्रीम, एंड पॉसिबिलिज्म फिलोसफी विच इज emphasized by the Vidal de la Blas, and this philosophy was started from the France. दोनों ही कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट था. डिटर्मिनिज्म मानकर चलता है कि सुप्रीम नेचर सुप्रीम है, और पॉसिबिलिज्म मानकर चलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ सुप्रीम है. नेक्स्ट, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, ह्यूमन्स एज क्ले टू बी मॉडल्ड बाय अ डोमिनेंट नेचर. ओके, यानी जो मनुष्य है वो क्या है, वो एक मिट्टी के समान है, और जो नेचर है उसको वो शेप देता है. कुल मिलाकर के ह्यूमन इज अ डस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर. दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द डिटर्मिनिज्म. एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, दैट इज नॉट द फिजिकल एनवायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस मैन बट ऑल्सो ह्यूमन एफर्ट हैज़ टू बी कंसिडर्ड. Further, we will discuss about the so many examples which are given by the famous geographer. Okay, so here we are trying to understand two philosophies, determinism and the possibilism. Determinism says what nature is supreme, and possibilism what is saying the human activities, human brain,
human intelligence are the supreme over the nature. Environmental determinism. Actually, environmental determinism says this view is the highly supported by most geographer and non-geographer from ancient to the modern period. In ancient to medieval period, the concept of geography by its and determinism was promoted by the non-geographers. Even the prominent schools were geographers like Hippocrates, Eratosthenes, Strabo, Arastu, Herodotus, Ptolemy, and others. Actually, these geographers were the supporter of the environmental determinism. And later, Frederick Ratzel was the highly supported of the concept of the environmental determinism. And his student Kumari Ellen Churchill Semple was also emphasized and supported the environmental determinism philosophy. Natural environment influence social, political and religious life of mankind. Actually ये तक बताया गया है कि डिटर्मिनिज्म में कि जो एनवायरनमेंट है वो मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक और उसके धार्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है. ओके, द एनवायरमेंटलिस्ट और डिटर्मिनिस्ट concept of geography was given by Burroughs, who reversed the usual form of the human ecology as the study of man and adjustment to natural environment. ओके, हार्टसॉन ने भी इस तरह से कहा कि नेचर और एनवायरनमेंट, एक्चुअली इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द नेचर एंड एनवायरनमेंट एंड नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन. ऐसे ही डियोल और भी कई तरीके के जो जोग्राफर्स थे उन्होंने अपने अपने तरीके से नेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को एम्फसाइज किया. फ्रॉम अ metaphysical and the philosophical position, for everything that happens there are conditions such that without those conditions nothing else could happen. Since determinists believe that all events including human action are predetermined मतलब पहले से ही निश्चित हैं पर्यावरण के द्वारा, यानी मनुष्य क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा ये पहले से ही निश्चित है. कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल तो यहाँ तक कहती हैं कि जो नेचर है उसने मनुष्य को पूरी तरह से प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है. ओके, मतलब वो कहना चाहती हैं कि मनुष्य के ब्लड में, बोन्स में और ब्रेन में नेचर है. वो ये भी कहती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जो पैर हैं बड़े मजबूत होते हैं और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उन्होंने थोड़ा सा भीरू और डरपोक बताया है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को उन्होंने धीर भीर गंभीर बताया है. तो इस तरह का जो नेचर हुआ है लोगों का वो भी एनवायरनमेंट की वजह से ही हुआ है. ठीक है, तो एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म आइडियाज़ अगर हम बात करें, चाहे अरस्तु की बात करें, बेरोन की बात करें, फ्लावियस की बात करें एंड मोस्ट फ्रेडरिक रैटजेल. एक्चुअली फ्रेडरिक रैटजेल एक ऐसा जोग्राफ़र है जिसने एंथ्रोपोजोग्राफी बुक लिखी और उसमें डिटर्मिनिज्म को पूरी तरह से सपोर्ट किया. नेचुरल एनवायरनमेंट वाज द प्राइम मोवर दैट जनरेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, सोशल पैराडाइग्राम एज वेल एज ह्यूमन एडेप्शन एंड रेस्पॉन्स. ये बात कही किसने? फ्रेडरिक रैटजेल ने, और उसी को डिटर्मिनिज्म का फादर भी माना जाता है. फ्रेडरिक रैटजेल जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे. तो फ्रेडरिक रैटजेल के बाद हम बात करते हैं एलन चर्चिल सैम्पल की.
Alan Churchill Semple was the student of the Frederick Rätzel. Actually, Alan Churchill Semple was an American geographer and the first female president of the Association of American Geographers. She contributed significantly to the early development of the discipline of the geography in human geography. ओके तो ये कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल जिन्होंने ये बताया कि जो डिटर्मिनिज़म है उस डिटर्मिनिज़म फिलॉसफी में हम डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट ही सुप्रीम है और एनवायरनमेंट ने ही मनुष्य को कंट्रोल किया हुआ है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहे, चाहे वो रेगिस्तानी क्षेत्र में रहे, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में रहे, उसकी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल किया है एनवायरनमेंट ने। ये बात कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल ने कही। सैम्पल in turn influence Albert Huntington and the William Morris Davis in the work The Pulses of the Asia and Civilization and Climate. एक्चुअली मनुष्य का जो सिविलाइजेशन है या उसका जो क्लाइमेट है वो एक्चुअली क्लाइमेट निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। हम बात करते हैं यू आर वॉचिंग जर्मनी। एक्चुअली जर्मनी इस यूरोपियन मैप में आप देख रहे हैं और ये जर्मनी वो जगह है जहाँ पर डिटर्मिनिज़म फिलॉसफी की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ, ठीक है। और जर्मनी के पास आप देखते हैं फ्रांस, इस फ्रांस में पॉसिबिलिज्म जो फिलॉसफी वाज बिगिन और स्टार्टेड। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वी टॉक्ड ऑलरेडी अबाउट दी both philosophies, determinism and possibilism. Determinism advocating about the nature is supreme, and possibilism is advocating what? The human races, human activities, human intelligence and human skill are the supreme over the nature. Core theme of the environmental determinism: environment control human action and activities. This is the very most important concept. Environment control human action and activities. Humans are badly dependent on the natural environment. Human life at the mercy of environmental forces. Human attitude, decision making are influenced by the environment. So, evidence of the environmental determinism. Climatic influence. क्या है क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस? व्हाट डू मीन बाय क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस? एक्चुअली चाहे हम अमेजन बेसिन की बात करें, चाहे हम नॉर्थ पोल की बात करें, चाहे बहुत सारी हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करें जो टुंड्रा टैगा रीजन में रहती हैं, याकूत, सैमोइड, लैप्स, युकागीर, एस्किमोज, है ना, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट एंड दे आर टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एनवायरनमेंट। वी discuss already or you have read already in previous classes that Eskimos are lived in the igloo houses. They are made up by the ice or snow. Okay, so they are totally dependent on their environment. तो ये क्या है? ये एक एविडेंस है, ये एक सबूत है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का। ओके, जैसे एंटार्क्टिका में बहुत ही एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता, तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, वहाँ एडवर्स क्लाइमेट है या बहुत ज़्यादा हॉट एरिया है, तो ऐसे एरिया में भी लोग नहीं रहते। लेकिन जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं लोग वहाँ प्रेफर करते हैं रहना। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? एविडेंस हो गया कि नेचर अपने ह्यूमन को और वहाँ के जो भी बायोटिक्स हैं, फ्लोरा फोना तक हैं, उन सब पर प्रभाव डालता है। ओके, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, नो लार्ज सिटीज़ इन द अंटार्कटिका। वाई नो लार्ज सिटीज़ इन अंटार्कटिका? बिकॉज इज़ टू कोल्ड एंड वेयर वी कैन फाउंड what? Very adverse climatic conditions. Since most of the
sunlight is reflected off there due to the tilt of the earth axis. Okay, as you know, earth is tilted on an axis with 23.5 degree angle and degree angle. The angle of the incoming solar radiations, hence most human settlements are between the Tropic of Cancer and Capricorn. Why? Because these areas between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, including the equator, this area is provides what favorable climatic conditions. चाहे सनलाइट की हम बात करें, चाहे रेनफॉल की हम बात करें. ओके, एक्सेस टू वाटर, एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, ये सभी इस तरह के टॉपिक्स हैं जहाँ लोगों को इस तरह की सुविधाएं होती हैं, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. एक्चुअली हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एविडेंस ऑफ द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. ओके, so human settlement have mostly been around 1% of the world fresh water. Most cities are built around major rivers. Most early civilizations were all around major water bodies: Mesopotamia, Tigris and Euphrates, and rivers, Egypt's Nile River, etc. And agriculture, environment trend to heavy influence what kind of agriculture culture practice. एक और हम we take a suitable example to understand the environmental determinism. Mountainous people are simple, backward and conservative because they live scheduled from other. Okay, people of Tibet. एक्चुअली तिब्बतियन जो पीपल हैं, टिबेटन पीपल्स हैं, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट. द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट और वेरियस आस्पेक्ट, द लिवलीहुड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन, रिसोर्सेज, एनाटॉमी, बिहेवियर, पॉलिटिकल नॉलेज और इंटेलेक्ट, हेल्थ एंड रिलीजन्स are determined by the environment. In short, it is basically how far man is affected by his physical environment. In short, so we talked already about the nature is supreme. Human livelihood की हम बात करते हैं तो ह्यूमन सोसाइटीज़, रिलीजन्स, उसके कस्टम, कॉस्ट्यूम्स, ओके, ये सब भी किसके द्वारा डिसाइड होते हैं? एनवायरनमेंट के द्वारा डिसाइड होते हैं. जॉब, ट्रेड, ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस, है ना, ऑल दीज आर डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द नेचर, बट इन प्रेजेंट टाइम few adverse climatic conditions areas are became very favorable areas to the man after the use of technology and skill brain. But about this topic we will talk later when we will try to understand about the possibilism philosophy. Health, talent, knowledge, all of these are determined by the nature. We discuss. अरस्तु ने भी ये बिलीव किया था कि उस जो ह्यूमन है एक्चुअली उसका जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो सब उसको एक तरीके से क्या करता है, डिटरमाइन करता है. अगेन he also explained the difference in the region in term of the climate difference. He shared that people of the middle latitudes are endowed with intelligence in the cold areas. The people are brave, courageous but unintelligent. Okay, ये बात अरस्तु ने कही. कोल्ड एरियाज के जो लोग होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, है ना, लेकिन बट अनइंटेलिजेंट. वो ब्रेव होते हैं, ताकतवर होते हैं, बट अनइंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसा उसने कहा. तो ऐसा क्यों हुआ? ये भी एनवायरनमेंट की वजह से ही हुआ. अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द हॉट लैंड्स आर लेजी एंड टिमिड.
इमैनुअल कांट ने क्या कहा कि जो गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, डेजर्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत लेज़ी होते हैं। ये बात अरस्तु ने कही। तो वो लेजीनेस कहाँ से आया उनके अंदर? एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट ही जो है वो पूरी तरह से सर्वे सर्वा है, सुप्रीम है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कल्चर, रिलीजन, ये सब भी पूरी तरह से एनवायरनमेंट के द्वारा ही इफ़ेक्ट होते हैं। चाहे उनके कस्टम की बात करें, चाहे कॉस्ट्यूम की बात करें, चाहे उनके रिलीजन की हम बात करें। ऑब्जेक्टिव्स टू determinism. In contrast, the other wing of the geographers and other scientists have had on object on determinism and try to show their position by forwarding their ideas of environment. Possibilism in spite of their profound interest. The idea of possibilism has been accepted by the geographers in the 20th century in France. We talked earlier. Okay, now next, objections to determinism. Man is not a robot without will of his own. Okay, अब ये चीज़ कहाँ से आ गई? एक्चुअली पॉसिबिलिज्म जो फिलॉसफी है वो क्या कहता है? पॉसिबिलिज्म फिलॉसफी तो ये कहता है कि भाई ह्यूमन के पास जो इंटेलिजेंसी है, जो स्किल है, जो उसकी मसल्स पावर है, उससे वो अपने नेचर को चेंज कर सकता है। यानी ह्यूमंस आर एबल टू कैन चेंज देयर एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, ब्रेन एंड स्किल। तो जो डिटर्मिनिज्म है उस पर क्या ऑब्जेक्शन लगा है? एक्चुअली अगर इसको हम कहें ऑब्जेक्शन टू डिटर्मिनिज्म, सो हेयर वी आर learning or try to understanding about the philosophy of possibilism. एक्चुअली जो डिटर्मिनिज्म का ऑब्जेक्शन है वो ही एक तरीके से फिलॉसफी ऑफ पॉसिबिलिज्म है। तो पॉसिबिलिज्म क्या एडवोकेटिंग करता है? मैन इज़ नॉट अ रोबोट विदाउट विल ऑफ हिज ऑन। यानी जो ह्यूमन है वो कोई रोबोट नहीं है बिना उसकी इच्छा के। मैन हैव बीन एबल टू क्रिएट हिज लैंडस्केप आउट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, रोड, ब्रिज, सेटलमेंट एक्सेट्रा। और आज के ज़माने में आप देखते ही हो बहुत बड़े बड़े टनल पहाड़ों के बीच से लोगों ने निकाल दिए हैं, है ना। आज चांद पर भी हम जा चुके हैं, मंगलयान के बारे में आपने सुना है, ठीक है। आज की डेट में जो मनुष्य है, लाइक अ फिश कैन स्विंग इनसाइड द वाटर, वो मछली की तरह पानी में तैर सकता है, पहाड़ों पर चढ़ सकता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, हाउसेस, ब्रिज एक्सेट्रा बना सकता है। तो इसका मतलब मैन इज़ नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट। ये चीज़ यहाँ पर आती है और ये ही एक तरीके का ऑब्जेक्शन टू डिटर्मिनिज्म है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेजर्ट लैंड, वी कैन टेक अ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ द थार डेजर्ट। आज अगर आप थार डेजर्ट में जाएंगे, इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान एंड इट इज़ स्प्रेड और लेट डाउन इन द श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, है ना, इन स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। आप जा कर के देखेंगे वहाँ पर जो इंदिरा कैनाल गई है तब से उस डेजर्ट की जो नेचुरल फिनोमिना है वो चेंज हो गया है। अब वहाँ पर क्रॉपिंग होने लगी है और जो वाटर की स्कैरसिटी थी वो भी वहाँ पर कम होने लगी है। बहुत पहले आप ने ये कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान है, वहाँ की जो विमेंस हैं वो आज भी दे आर ट्रेवल टू 4 to 5 किलोमीटर टू कलेक्ट द वाटर विद बैलेंसिंग पोट्स और मटकाज। ओके, बट इन प्रेजेंट टाइम यू कांट सीन देयर, वाई? ड्यू टू दी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, और उसने वहाँ पर काफ़ी चेंजेस भी किए हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ द माइनिंग कॉम्प्लेक्स इन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। आप देखिए ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में 300-400 किलोमीटर दूरी से पानी आता है और वहाँ पर माइनिंग टाउन डेवलप हो गए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन ने अपने स्किल से, अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी टेक्नोलॉजी से ऐसे एडवर्स एरियाज़ को फेवरेबल एरियाज़ बना दिया है। ओके,
black skin people have lived in the USA a lot about for generation without any changes in their skin pigments. Similarly, white skinned people have lived in the hot areas of the world for more countries without necessary becoming black. Actually आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत कुछ लगातार चेंज होता जा रहा है. ह्यूमन आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिस्ट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स दे आर एजेंट्स ऑफ फ्री विल. इफ ह्यूमन्स आर ऑलवेज एजेंट ऑफ द फ्री, does that means it is not possible to predict any type of the behavior of the social outcome of the given infrastructure. So यहाँ क्या बात आई है? एक्चुअली पॉसिबिलिज्म फिलॉसफी क्या कहने की कोशिश कर रही है भाई? पॉसिबिलिज्म फिलॉसफी कहती है मैन इज़ नॉट अ रोबोट ऑफ द एनवायरनमेंट. यानी मैन कैन चेंज एनीथिंग इन देयर environment with the help of the technology, brain, skill and hard work. Okay. जबकि डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म क्या कह रहा था? डिटर्मिनिज्म क्या कह रहा था? नेचर इज सुप्रीम एंड मैन इज द डस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर. बट पॉसिबिलिज्म फिलोसफी इज एडवोकेटिंग व्हाट? मैन इज नॉट ए रोबोट, मैन इज नॉट अ डस्ट पार्टिकल ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके, यहाँ हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. एनवायरनमेंट डिटरमाइंस कल्चरल फैक्टर. एनवायरनमेंट पॉसिबिलिज्म. एक्चुअली एनवायरनमेंट सेलेक्टिव ऑफ द लिमिट्स कल्चरल फैक्टर. मतलब क्या है? यानी जो एनवायरनमेंट है वो उसके कल्चर को भी इफ़ेक्ट करता है. जबकि जो ह्यूमन पॉसिबिलिज्म है वो क्या कहता है? वो कहता है कि वो अपने सिलेक्शन से चूज करता है. ओके, तो यहाँ हम और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एनवायरमेंटल वर्सेस पॉसिबिलिज्म. एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वुड बी एनी क्लाइमेटिक और जोग्राफिक हिंड्रेंस टू ह्यूमन्स सच एज डेजर्ट और माउंटेन्स. Possibilism can be observed in any situation where human conquer their environment, such as through buildings, road, arid land, or establishing radical settlement in hospitable conditions. Okay, so अब यहाँ now you are very much able to understand the difference between the determinism and the possibilism. Again, determinism is advocating what environment is supreme, and possibilism it says what human activities, human intelligence, human skill and technology are supreme over the nature. Third concept, new determinism, stop and go. Actually जो न्यू डिटर्मिनिज्म फिलॉसफी इज गिवन बाय द ग्रिफ्ट टेलर. ओके, पहले इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी हम समझते हैं. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली स्टॉप एंड गो फिलॉसफी इज ऑल्सो नाउन एज द मध्यम मार्ग एंड मिडिल पाथ. एक एग्जांपल जो कि बहुत अच्छा है और इट विल हेल्प टू यू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यू डिटर्मिनिज्म. सपोज एक पुलिसमैन किसी सर्कल पे खड़ा हुआ है तो वो ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है बट पूरी तरह से नहीं रोक सकता और उसे जाने की परमिशन वो दे ही देगा. ओके, इसी तरह से जो ह्यूमन है वो अपने नेचर में थोड़ा चेंज कर सकता है बट वो पूरी तरह चेंज नहीं कर सकता. सेम उसी तरह से जो एनवायरनमेंट है वो अपने ह्यूमन बीइंग्स को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन वो पूरी तरह से उनको कंट्रोल नहीं कर सकता. अ जोग्राफर ग्रिफ्ट टेलर इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट अ मिडिल पाथ. वी टॉक्ड ऑलरेडी. एक्चुअली ये एक मिडिल पाथ है जो ये बताने की कोशिश करता है कि डिटर्मिनिज्म अपनी जगह सही है और पॉसिबिलिज्म अपनी जगह सही है. Men can change little bit in their environment, and environment can influence
human beings, little bit influence of human beings. Okay, concept of possibilism we talked already. Possibilism is the view that the physical environment provides the opportunity for a range of possible human. हम जब पढ़ रहे थे एक तरीके से जो लिमिट्स ऑफ द एनवायरनमेंट है, उस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया हुआ है पॉसिबिलिज्म के बारे में. पॉसिबिलिज्म, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफर्स numerous ways for a culture to develop. People make culture trade choice from the possibilities offered by the environment to the satisfy their needs. Actually, possibilism philosophy was started or began in the France, and Vidal de la Blas was advocated of this philosophy. High technology societies are less influenced by physical environment. They argue that man is not a total slave of his environment. वहाँ क्या बात आई थी डिटर्मिनिज्म में? डिटर्मिनिज्म में तो ये कहा गया था क्या कि man is dust particle of the environment, man is robot of the environment. But possibilism philosophy is advocating what man is not a total slave of his environment. Man is not a dust particle of the environment. Okay, Paul Vidal de la Blas, we talked already. Environment sets limitations for cultural development, but it does not completely define culture. भाई कल्चर तो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, और जहाँ मर्जी की बात आ गई वहाँ एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ एनवायरनमेंट सुप्रीम नहीं हो सकता. कल्चर इज इंस्टीड इज डिफाइंड बाय द अपॉर्चुनिटीज एंड डिसीजन दैट ह्यूमंस मेक इन रेस्पॉन्स टू डीलिंग विद सच लिमिटेशंस. देखिए लास वेगास, ये पहले ऐसा लास वेगास था. यू आर वॉचिंग इन दिस स्लाइड और इमेज, एंड नाउ वो डेवलप हो गया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ह्यूमन ने अपने स्किल से, अपने ब्रेन से, अपने इंटेलिजेंसी से और टेक्नोलॉजी से ये सब डेवलपमेंट कर दिया है. इसमें आप लाइट देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, है ना. ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन ने अपने प्रयास से, अपने हार्डवर्क से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने ब्रेन से किया है. इसका मतलब मैन इज़ नॉट अ डस्ट पार्टिकल ऑफ द एनवायरनमेंट. Core theme of environmental possibilism: human are free to choose and decide their activities. Nature do not control human beings. Nature provides opportunity and possibilities to human. Environment perception के बारे में आपकी बुक में इतना खास नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी if people believe that a flood was caused by the gods. एनवायरमेंट परसेप्शन, एनवायरमेंटल का परसेप्शन क्या है ना, एक तरीके से पूर्वाग्रह, एक सोच है उनके अंदर कि भाई जो बाढ़ आ रही है वो भगवान की वजह से आती है, कॉज्ड बाय द गॉड. बट पॉसिबिलिज्म फिलॉसफी तो क्या कहती है? इफ़ अदर पीपल बिलीव दैट द फ्लड वाज अ नेचुरल डिजास्टर. इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ना तो नेचर सुप्रीम है और ना ही ह्यूमन बीइंग सुप्रीम है. बोथ आर इक्वल. A geographer Griff Taylor introduced another concept which reflect a middle path, madhyam marg, between the two ideas of environmental determinism and possibilism. He termed as the new determinism or stop and go determinism. इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ. जैसे कोई पुलिसमैन किसी चौराहे पर खड़ा है, किसी सर्कल पर खड़ा है, तो वो ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकता है, पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, उन्हें जाने की इजाज़त देनी ही पड़ती है. इसी प्रकार मनुष्य अपने एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, उसी तरह एनवायरनमेंट अपने ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, पूरी तरह से नहीं कर सकता. ग्रिफ टेलर 1 दिसंबर 1880 सेक्स इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, एंड ही वॉज डाइड इन 5 नवंबर 1963.
mainly he was belonged to Australia, but later he was settled in the इंग्लैंड, ब्रिटेन। वो एक जोग्राफर थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव विज्ञानी थे और उन्होंने स्टॉप एंड गो फिलॉसफी को दिया। न्यू डिटर्मिनिज्म एक्चुअली द स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ द बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम डिटर्मिनिज्म एंड एक्सट्रीम पॉसिबिलिज्म। ओके, ये ग्रिफ टेलर के थॉट्स थे। एक्चुअली it was put forward by Griff Taylor, leading Australian geographer. He stressed that a geographer's role is essentially that of an advisor, not to interpret the nature plan. New determinism is also known as the stop and go. We talked already. Determinism, commenting on the philosophy of Bentham, remarked, "Man, not environment, judges an action as wise or foolish by reference to some aim or goal the consider desired until such a goal has been set up. Wisdom and fully have exact meaning." Griff Taylor described his view in the short term. People might attempt whatever they wished with regard to their environment. Put in the long term, nature plan would ensure that the environment won the battle and force. एक्चुअली ग्रिफ टेलर ने तो ये सिंपल कहा कि वो तो एक्सट्रीम डिटर्मिनिज्म के भी अगेंस्ट हैं एंड एक्सट्रीम पॉसिबिलिज्म के भी अगेंस्ट हैं। उन्होंने तो कहा मध्यम मार्ग। एक्चुअली डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म दोनों अपनी जगह करेक्ट हैं। ओके, अ ह्यूमन कैन चेंज द एनवायरनमेंट through various innovations and activities, but there is a limit to change by a human environment. यही इसका core concept है। Human can change their environment through various innovations and activities, but there is a limit to change by a human environment. Clear? Then thank you so much. Now, learner, you are able to understand about the three concepts of the human geography. The topic we talked or discussed about the determinism, possibilism and new determinism. Determinism का जो core concept है वो क्या है? Nature is supreme. And possibilism का जो core theme है, core concept है वो क्या है? Human activities are supreme. But Griff Taylor क्या कहता है? Griff Taylor कहता है नेचर और पॉसिबिलिज्म, जो डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म है उसका मध्यम मार्ग, यानी नेचर अपनी जगह सही है, पॉसिबिलिज्म अपनी जगह सही है। नेचर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता है, उसी तरह से ह्यूमन अपनी टेक्नोलॉजी से और ब्रेन से नेचर को भी थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर लर्नर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड द थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन geography: determinism, possibilism and new determinism. Thank you so much.